Okay, this is Mehul Bambania. We are discussing about the projections of line, and in that series, we had discussed about the basic problem in which there is a certain inclination with one of the plane, that is either with the vertical plane or either with the horizontal plane. Now, the objective of today's session is to give you the method, or I will show you the step through which you can solve the last case, that is when your line is actually inclined with both horizontal plane and vertical plane. Up to this is the last case which we already discussed in the very first introductory session. What is the problem with this type of cases? Because this line is having inclination with horizontal as well as vertical plane, so you are not in the position to visualize the true length of this line AB, either in the front view or in the top view. We are not in the position to judge the true length. Whatever length appeared, whatever projected length appeared either in the front view, that is the apparent length, as well as when you look from the top, definitely this line having an inclination with vertical plane. So in that case also, whatever projections is appeared on this top view projections, that is also apparent length. So हम लोग in this case हम लोग ये केस में ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू या तो टॉप व्यू में विजुलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन इंक्लिनेशन पे है वर्टिकल प्लेन के साथ एज वेल एज हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ. तो कोई भी प्रोजेक्शन व्यू में हमें ट्रू लेंथ विजिबल नहीं होगा. ठीक है. सो डेफिनेटली वी कैन नॉट स्टार्ट इधर फ्रॉम फ्रंट और इधर फ्रॉम टॉप. हम लोग फ्रंट व्यू से भी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि दिस प्रोजेक्टेड लेंथ हमें पता नहीं है. टॉप व्यू से भी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉप व्यू का ट्रू लेंथ भी या तो प्रोजेक्टेड लेंथ पता नहीं है. ठीक है. दिस इज द अपेरेंट लेंथ. सो दैट टू solve such kind of problem, we should have some methods. Before I will explain this diagram, I want to introduce certain terminology that you need to understand. इसको समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते या तो अंडरस्टैंड कर लेते. देखिए, true length, that means obviously suppose if we are having line AB of 100 mm of length, so that 100 mm we refer as a true length, right? Right now this AB having an angle with vertical plane, that angle is actually true angle, and that is we denoted by mean of 5. And this line is having angle with horizontal plane also, that angle we are denoted by mean of theta. So this theta and 5 we referred as a true angle, right? True angle with respect to vertical plane and horizontal plane. Now because this line is having inclination, क्योंकि ये लाइन दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड है, उस वजह से इधर फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में हमें ट्रू लेंथ नहीं दिखेगा. whatever projections we are getting, that is the apparent length projections. ठीक है. जो भी projections में हमें लेंथ विजुलाइज होगी वो apparent length होगी. लाइक जैसे AB 100 mm है, which is having a inclination with VP. तो जब आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो AB का प्रोजेक्शन कहाँ पे गिरेगा? द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी इज हियर ए डैश बी डैश, राइट? यू जस्ट कंसीडर दिस इज द फाइनल प्रोजेक्शन ए डैश बी डैश. तो ये फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन है और साफ दिख रहा है कि ए डैश बी डैश का जो लेंथ है वो ए बी जितना नहीं होगा. इट इज अपेरेंट लेंथ और रिड्यूस्ड लेंथ. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली अपेरेंट लेंथ इज. इन द सेम वे आप जब टॉप व्यू आप लाइन का देखोगे, 100 mm लाइन का AB का, व्हेन यू प्रोजेक्ट द टॉप व्यू, जब उसका टॉप व्यू प्रोजेक्ट करोगे HP के ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, तो प्रोजेक्शन टॉप व्यू प्रोजेक्शन गिरेगा AB. सो दिस AB स्टैंड्स फॉर टॉप व्यू प्रोजेक्शन. दिस इज रिफर्ड ओवर हियर. नाउ हियर आल्सो सेम थिंग हैपन्स. जब टॉप व्यू से आप इस लाइन को देखोगे, क्योंकि इस लाइन का HP के साथ भी एंगल है, तो टॉप व्यू में जो भी लेंथ दिखेगा वो अपेरेंट लेंथ दिखेगा. So that is we referred as the apparent length in the top view as well as in the front view. Whatever length we are able to see, that is referred as the apparent length.
In the same way, there is a apparent angle C, because this theta is actual angle. Maybe let's say this line is having angle with horizontal plane is 30 degree. So when you look from front, definitely because this 30 degree is not simply parallel with vertical plane, it's also having inclination vertical with vertical plane. So because of that, when you look from front, this theta or this true angle also look like apparent angle, right? So that apparent angle we referred as a alpha. That apparent angle with respect to HP we referred as alpha, and when you look from the top, this 5 is also becoming apparent angle, so that 5 will become beta, right? So that alpha and beta is ultimately, see, this alpha and this beta will the angle, once you are getting the projection, that is also project apparent length. In the same way, this is also apparent angle with respect to HP, and this is apparent angle with respect to VP. So this is the apparent angle. What you need to remember this terminology. When we refer theta and phi, this is the true angle. It is given in the statement. Problem में ये दिया होगा कि भाई line AB, suppose that line AB HP के साथ 30 डिग्री बना रहा है, so that means theta must be 30 डिग्री. ऐसा जरूरी नहीं कि HP के साथ वो 30 डिग्री बना रहा है तो प्रोजेक्शन में भी वो 30 डिग्री HP के साथ बनाएगा. इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज प्रोजेक्शन में उसका ओरिएंटेशन apparent लेंथ और apparent डायरेक्शन में होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट थीटा चेंज हो जाएगा और वो रिफर करते हैं हम उसको अल्फा की तरह. ठीक है, उसको अल्फा बोलेंगे. तो अल्फा इज द apparent एंगल. सेम वे में टॉप व्यू में भी वही सिचुएशन है. वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल दिया है उसको हम कंसीडर करेंगे 5, जो ट्रू एंगल है. लेकिन जब टॉप व्यू से देखेंगे तो वो ट्रू एंगल नहीं विजुअलाइज होगा, बट उसके वजह जो प्रोजेक्शन लाइन है वो वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट इज द अपरेंट एंगल बीटा. तो ये अल्फा बीटा अपरेंट एंगल है और थीटा 5 जो है वो ट्रू एंगल है. ये नोटेशन इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ because it is necessary to understand complete process. This notation is very essential, right? Now अब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन. अब जैसे मैंने बोला ट्रू लेंथ तो कहीं पे विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं. दिस आर द स्टेप्स थ्रू विच वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ये स्टेप्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम जिसमें इंक्लिनेशन दोनों के साथ होगा आपका थीटा और 5. So now let's start to solve this problem. See, these are the steps which we need to follow to solve such kind of problem. The very first step is we should rotate this line AB such that it will in the position that it will become parallel to vertical plane. So that was the first step. In the second step, we have to rotate this line AB so that it will become parallel to horizontal plane. So this is the second step. Don't confuse about this step. I will explain everything. The next third step is you need to find out the locus. During this process, whatever locus happen in the front view, you just locate that locus. I will show you what exactly locus is. Then you find out the locus in the top view, right? And finally, with the help of that locus, you just once you find out the locus of B, definitely we are in the position to join AB, which will give you the front view and top view projections, right? Now don't worry about this all steps. The ultimate objective of this problem is what we need: projection, that is the front view projections and top view projections. हमारा अल्टीमेट गोल क्या है भाई? ऑब्वियसली फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना. दिस आर द फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन ए डैश बी डैश. ठीक है, ये हमारा फाइनल गोल है फ्रंट व्यू के लिए. इफ इट इज अ फ्रंट देन डेफिनेटली वी आर यूजिंग डैश. टॉप व्यू क्या है भाई? ए बी इज अवर टॉप व्यू. सो ऑब्वियसली विदाउट डैश वी आर डिनोटिंग दिस टॉप व्यू ए एंड बी. तो ये हमारा गोल है. इसको अचीव करने के लिए इंटरमीडिएट इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो पहले ये दो स्टेप्स को डिस्कस करते हैं इलेबोरेटिवली. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? वी शुड रोटेट लाइन ए बी सच दैट कि वो VP से पैरेलल हो जाए. तो पहला स्टेप इसके रेफरेंस में आप समझिए.
देखिए पहला स्टेप क्या है कि ए बी ये वाला लाइन है जिसका हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, जिसका एचपी के साथ कुछ एंगल थीटा है, वीपी के साथ कुछ एंगल 5 है। अब हमें लाइन रोटेट करना है सच दैट कि वो वर्टिकल प्लेन से पैरेलल हो जाए। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट कि हमें थीटा को कांस्टेंट रखना है, थीटा चेंज नहीं करना है, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। 5 को चेंज कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब थीटा को कांस्टेंट रख के 5 को चेंज करते हैं। देखिए ये लाइन को आप इस वाले एंड से पकड़ लीजिए फ्रॉम ए, यू जस्ट होल्ड दैट लाइन एंड ट्राई टू रोटेट दिस बी। ये बी को रोटेट करना स्टार्ट कीजिए। वंस यू रोटेट, so there is a one situation, this B1 situation. A को पकड़ के रखना है, B को रोटेट करना स्टार्ट करना है सच दैट कि थीटा चेंज ना हो। थीटा चेंज नहीं करना है, सिर्फ 5 चेंज होना चाहिए। 5 को चेंज करते करते हम रोटेट करेंगे लाइन को। तो व्हाट हैपन एक्चुअली, you are getting a situation in which this line AB will become parallel to VP. देखिए ये वाली लाइन पैरेलल है वर्टिकल प्लेन से। ये बी को आपको रोटेट करना है इस तरीके से, ठीक है। ये रोटेशन पूरा कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। व्हेन यू रोटेट दैट बी एंड व्हेन यू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, सी दिस आर द वे थ्रू विच यू कैन फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल, ठीक है। बी को रोटेट करना यहाँ से स्टार्ट कीजिए और रोटेट करते करते व्हेन यू complete that circle, so what is the conclusion? During that process we are having one point over here where ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी वर्टिकल प्लेन के साथ। so that was the first step. Now second step, in the second step what is actually they are asking for, you just make that AB line parallel to horizontal plane. पहला स्टेप सिर्फ समझ लीजिए कि आपको लाइन को रोटेट करना है उस तरीके से कि जिसमें आपका लाइन पैरेलल टू वीपी हो जाए। नाउ इन दैट केस वी आर नॉट changing theta at all. That is keep in your mind. Now in the second step we are keeping this 5 as a constant. 5, what exactly 5 is? 5 is the angle between this line and vertical plane. So we have to keep this 5 as a constant. इस 5 को चेंज किए बिना बी को रोटेट करना है सच दैट कि रोटेट करते करते ये जो लाइन ए बी है इट विल बिकम पैरेलल टू होरिजेंटल प्लेन। योर रोटेशन मस्ट बी इन दिस वे, दिस इज द रोटेशन, हाउ यू कैन कंप्लीट rotation. During this rotation it will form a circle, right? And again you will reach at a original position, that is the B. So during this rotation, उस रोटेशन में थीटा चेंज होते जाएगा। थीटा विल बिकम 0 व्हेन यू रोटेट ओवर हियर एंड व्हेन इट विल बिकम 0 ये लाइन जो है एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएगा एचपी के साथ। दिस इज द सेकंड स्टेप। अब ये स्टेप्स करने का मतलब क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज व्हाट एक्चुअली, व्हेन यू स्टार्ट टू रोटेट दिस लाइन, सपोज फर्स्ट स्टेप में व्हेन यू स्टार्ट टू रोटेट दिस लाइन, डेफिनेटली व्हेन इट विल बिकम पैरेलल टू VP, तो इन दैट सिचुएशन फ्रंट व्यू में आपको इस लाइन का ट्रू लेंथ विजुलाइज हो जाएगा, दिस AB1, because now it is parallel to VP, right? So that this AB1 is the true length. So the projection of AB1, see this is the projection of A dash B1. So this AB1 will be the true length and the angle, definitely हमने थीटा तो चेंज किया नहीं है, what I mentioned in the very first step, थीटा कांस्टेंट रखना है। तो थीटा भी पता है, whatever theta is given that is also true angle. So that with that theta you can actually draw the true length of that line AB. This is the first step, that's why it is denoted by mean of, it is not a final answer, that's why it is denoted by mean of B. We need to reach at a B dash. We required A dash B dash, but we are not in the position right now to find out the B dash. So this is the, with the first step we are in the position to draw the front view projection in which we are able to see the true length. अब इसी का टॉप व्यू प्रोजेक्शंस क्या आएगा, इसी चीज का टॉप व्यू प्रोजेक्शंस, ऑब्वियसली this B1 dash will appeared somewhere over here in the way of B1, right? And A is already there, so the projections of AB in which your line is parallel to VP. So in that case when the line is parallel to VP, ये projection आएगा आपका टॉप व्यू का।
right? This is the top view projection for first step. Same way, in the same way, in the second step, what we did is we are keeping this 5 as a constant. ये 5 जो vertical plane के साथ एंगल है उसको constant रख के थीटा को चेंज करना है, बी को उस तरीके से रोटेट करेंगे जिसमें ये हो जाएगा पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये सिचुएशन में व्हेन यू लुक फ्रॉम टॉप व्यू में से ए बी ट्रू लेंथ दिख जाएगा। दिस इज द ए बी वन और बी टू, दिस इज द ट्रू लेंथ। तो व्हेन यू प्रोजेक्ट इट फ्रॉम द टॉप, so the top view projection, that is the A B1 or B2, whatever notation it will be, but it is not B, so it is A B1 or A B2. This is the true length, and obviously we are not changing 5 at all, so that the angle is obviously 5, that is the angle with respect to vertical plane. तो 5 तो चेंज नहीं किया था, तो वही 5 एंगल पे ए बी वन का ट्रू लेंथ का प्रोजेक्शन, टॉप व्यू प्रोजेक्शन आपको क्रिएट करना है। और सेम सिचुएशन में, मतलब यही सिचुएशन में आपका फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन डेफिनेटली, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एचपी है, तो इसी का प्रोजेक्शन B1 का या तो B2 का प्रोजेक्शन यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, A डैश B डैश मतलब B2 डैश या तो B1 डैश। ये दिस इज द पैरेलल लाइन इन विच your it is a parallel line with respect to. So in this way we are splitting this entire problem into 2 parts, right? इसी चीज को मैं थोड़े सेपरेटली यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। पहला जो केस था उसमें क्या रखा था हमने, थीटा कांस्टेंट रखना है, मतलब थीटा कांस्टेंट रख के लाइन को वीपी के साथ पैरेलल कर देना है, ठीक है। थीटा कांस्टेंट रख के लाइन वीपी के साथ पैरेलल होगा, तो इन दैट केस दिस इज द आंसर। सी दिस ए बी वन, आपका थीटा एंगल पे आपका लाइन है, एचपी के साथ कुछ एंगल है और वीपी के साथ वो पैरेलल है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोजेक्शन फॉर द फर्स्ट स्टेप, जिसमें ए डैश बी वन और ए बी वन ये फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन और ये टॉप व्यू प्रोजेक्शन। सिर्फ इतना ही याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें ट्रू लेंथ दिखेगा। दिस इज व्हाट अवर आउटकम इज। सेम वे में इन द सेकंड स्टेप वी आर कीपिंग 5 एज द कांस्टेंट। 5 मतलब वर्टिकल प्लेन के साथ जो लाइन का एंगल है उसको कांस्टेंट रखना है और लाइन को रोटेट इस तरीके से करना है कि वो एचपी के साथ पैरेलल हो जाए। तो एचपी के साथ जब पैरेलल हो जाएगा तो डेफिनेटली वीपी के साथ कुछ एंगल है, वीपी के साथ कुछ एंगल है, दैट इज द 5, और एचपी के साथ पैरेलल है। तो टॉप व्यू पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप व्यू में ही ट्रू लेंथ दिखेगा, दैट इज ए B2 or A B1. So this is the top view, A B1 or B2, whatever notation you are using, it doesn't matter. But this is indicating the intermediate step, that's all. So A B1 or A B2 will be the top view projection in which we are able to see the true length वाला top view, और जिसका vertical plane के साथ एंगल 5 है, ठीक है। और ये एचपी के साथ पैरेलल है, तो डेफिनेटली पैरेलल सिचुएशन में एक्स वाई के साथ भी इस तरीके से पैरेलल प्रोजेक्शन बनेगा, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन, दैट इज द ए डैश बी डैश मतलब B2 डैश या तो B1 डैश। तो यहाँ तक समझिए। अब दिस सिचुएशन आई विल एक्सप्लेन बाय मीन ऑफ दैट व्हाट आई कैन से, पेंसिल के जरिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वेट, ओके, नाउ सी we need to follow 2 steps, right? 2 steps मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, ये पेंसिल दिख रहा है, ओके। देखिए, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ये देखिए इनिशियल पोजीशन मतलब लाइन बिल्कुल पैरेलल है एचपी के साथ और वीपी के साथ। नाउ दिस इज द थीटा। जब लाइन को मैं इस तरीके से इंक्लाइन करूंगा तो ये लाइन हो जाएगी इंक्लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एचपी, so this is the theta, right? And इसी लाइन को जब मैं इस तरीके से टिल्ट करूंगा तो these are the angle which will give the angle between vertical plane and the line, ठीक है। these are the 5, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइन है अभी, this line right now, this line is actually inclined with both the plane, that is 5 and theta. This is the theta, this is the horizontal plane. फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। this is the parallel line with both the plane, this is theta and this is 5. आप देखिए पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि भाई
लाइन को इस तरीके से रोटेट करना है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। लाइन को इस तरीके से रोटेट करना है कि वो लाइन पैरेलल हो जाए वर्टिकल प्लेन के साथ, बट थीटा चेंज नहीं करना है, दिस इज द थीटा। सो विदाउट चेंजिंग थीटा, देखिए विदाउट चेंजिंग थीटा, इफ आई विल रोटेट दिस लाइन इन दिस वे, देखिए मैं थीटा चेंज नहीं कर रहा हूं, इफ आई विल रोटेट लाइन इन दिस वे देन इट विल फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल एंड थीटा कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब यहाँ से हिंज कर दीजिए, यहाँ से लाइन को हिंज कीजिए, ये फाइनल पोजीशन था, मैंने बी को मूव किया इस तरीके से, तो एक सिचुएशन ये वाला आ गया जहां पे लाइन पैरेलल हो गया वर्टिकल प्लेन के साथ। अभी स्टिल इफ आई एम कंटिन्यू टू मूव दिस लाइन, तो ये फिर से इस तरफ आएगा, तो इस तरफ भी एक पैरेलल सिचुएशन है, पैरेलल टू वीपी, और फिर से जब इसको कंटिन्यू मूव करोगे तो ये कंप्लीट सर्कल फॉर्म करेगा। तो नाउ अगेन आई विल शो यू, दिस इज द फाइनल पोजीशन ए डैश बी डैश। अब मुझे क्या करना है, थीटा को चेंज किए बिना, आई एम नॉट चेंजिंग थीटा एंड बी को रोटेट कर रहा हूं, दिस इज द बी, थीटा वही का वही है। देखिए जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो एक सिचुएशन में ये पैरेलल हो जाएगा वर्टिकल प्लेन के साथ। तो दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ क्यों ये करते हैं, ठीक है, लोकस वाला कॉन्सेप्ट अब मैं समझाता हूँ, ठीक है। जो इसमें थर्ड स्टेप क्या है कि यू फाइंड आउट द लोकस फॉर द फ्रंट एंड टॉप। देखिए पहला स्टेप में लोकस क्या है, दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट वेयर वी आर, इन विच वी आर इंटरेस्टेड। जब मैं इसको, ये बी को पकड़ के रखिए, ये तो हमें फाइंड आउट, ये तो मिल जाएगा, बट द इश्यू इज विद दिस बी पॉइंट। नाउ सी, ये बी हमें चाहिए, व्हेन आई विल रोटेट दिस, तो बी जो पॉइंट है वो इस तरीके से रोटेट करता करता एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करेगा। इज इट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बी विल फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है, और उसी सर्कल के ऊपर बी का प्रोजेक्शन कहीं पे होना चाहिए। जब आप टॉप व्यू से देखोगे तो it will form a complete circle, so that circle is ultimately locus of that b point। and front में कैसे दिखेगा, you just look from the front, see this is the b point, when I will rotate, so in that way the front में b का motion देखिए, so in the front when I will rotate this point in this way, तो फ्रंट में ये सर्कल जो है वो लाइन दिखेगा, टू एंड फ्रो लाइन दिखेगा। इज इट राइट? तो पहले स्टेप में आपको, इन द फर्स्ट स्टेप, दिस बी पॉइंट व्हेन आई विल रोटेट दिस लाइन, तो ये टॉप व्यू में सर्कल फ्रेम करेगा और फ्रंट व्यू में एक लाइन फ्रेम करेगा, ठीक है। तो वही है लोकस। ये क्यों एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन यहां तक समझिए। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप क्या था। In the second step, we should not alter this this 5. This is the angle with respect to vertical plane. तो ये चेंज किए बिना थीटा को चेंज कर सकते हैं। दिस इज द थीटा, ठीक है, थीटा को चेंज कर सकते हैं। तो हाउ इट विल पॉसिबल, देखिए मैं 5 को चेंज नहीं कर रहा हूं और जस्ट आई विल रोटेट दिस लाइन इन दिस वे। देखिए पूरे रोटेशन में ये लाइन 5 यहाँ मेंटेन है, 5 आई विल मेंटेन दिस 5 आइदर इन दिस वे और आइदर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दिस इज द 5 एंड ड्यूरिंग दिस रोटेशन सी हियर ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस सेम 5, दिस इज ऑल्सो सेम 5 and again I will reach this position. So that means you hold this point A and इसी point को rotate करते जाइए, you will get the complete circle, ठीक है, सामने complete circle का ट्रेस मिलेगा, that is what the locus of that point B। अब यहाँ इस सिचुएशन में सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था, जब आपने when we start to rotate this, definitely we are in the position where this line will become parallel to horizontal plane having this angle 5। so definitely टॉप व्यू में इसका ट्रू लेंथ विजिबल होगा, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट विथ टॉप व्यू जिसमें आपका ट्रू लेंथ विजिबल होगा और यू कैन ड्रॉ द फ्रंट व्यू। लोकस का क्या है, व्हेन यू स्टार्ट टू रोटेट दिस डेफिनेटली ये फ्रेम करेगा कंप्लीट सर्कल। जो बी का लोकस फ्रंट व्यू में कंप्लीट सर्कल दिखेगा बी डैश, और टॉप व्यू में क्या दिखेगा, व्हेन इट इज टॉप, तो ये सर्कल जो है, तो सर्कल हाउ इट इज लुक लाइक, सर्कल इज लुक लाइक इन दिस वे, ठीक है, द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप व्यू। तो
ये लोकस क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है, दैट आई विल शो यू। अभी किसी को डाउट है तो मुझे पूछिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, कि हाउ इट इज पॉसिबल टू मेंटेन 5 एज ए कांस्टेंट एंड हाउ टू अल्टर थीटा। दो ही केस है। यहाँ पे देखिए पहला केस है जिसमें मैंने इसको इस तरीके से रोटेट किया, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 चेंज हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा। थीटा एवरी टाइम इज सेम, कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन में थीटा चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज द हाउ यू कैन रोटेट दैट by keeping theta as a constant, and this is second in which you can keeping 5 as a constant. So this is what my understanding is. Now you just use that understanding in this projections. Now maybe projections is visible. ये क्यों करना पड़ता है, देखिए why we are doing that thing is, see here why we are doing that. In the very first, what we will do, we are moving this line AB or B point such that it will become parallel to HP. आप देखिए ये कंप्लीट जब सर्कल खत्म करेगा तो ये B का जो सर्कल है उसी के ऊपर आपका B पॉइंट है। दैट मीन्स द लोकस, जो B का सर्कल, आप लोकस की बात कर रहे हो तो उसी लोकस के ऊपर आपका B पॉइंट है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए। जब आपने पहले स्टेप में रोटेट किया, व्हेन यू रोटेट दिस लाइन बाय कीपिंग थीटा एज ए कांस्टेंट, तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, सर्कल, और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो वही चीज यहाँ पे शो किया है। व्हेन यू रोटेट दिस लाइन फ्रॉम दिस टू दिस, इट विल बिकम पैरेलल टू VP एंड देन यू कंटिन्यू टू रोटेट दैट लाइन। दैट मीन्स आपका जो प्रोजेक्शन जो है, फाइनल प्रोजेक्शन, वो कहीं तो B या इसी लाइन की, इसी लोकस के ऊपर होना चाहिए। दैट इंफॉर्मेशन वी आर कंक्लूडिंग। सेम वे में जब आप लोकस ऑफ B यहाँ पे देखते हो, जब आप इसको रोटेट करोगे तो फ्रंट में इट इज लुक लाइक टू एंड फ्रो मोशन। So that front to and fro motion, this is the how this B locus will be somewhere in this way, in the straight line. So this is first information. ये locus का मतलब क्या है कि B यहाँ कहीं पे होना चाहिए, B dash, और टॉप व्यू के लिए B यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। That is what the outcome is. सेम वे में जब हमने 5 को कांस्टेंट रख के थीटा को चेंज किया तो ऑब्वियसली इस तरीके से सर्कल में हमने लाइन को रोटेट किया था। तो फॉर दैट फ्रंट व्यू में वो लोकस कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू में इट विल फ्रेम अ सर्कल और टॉप व्यू में इट विल फ्रेम अ स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज हाउ फ्रंट व्यू में ऑब्वियसली इट विल फ्रेम अ सर्कल, सर्कल के ऊपर B डैश कहीं पे तो होना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट टू रोटेट दिस, डेफिनेटली वंस यू फ्रेम अ सर्कल, so on that circle only you are having that B2 point as well as you are having that B point, right? So that is what we are interested in, to find out where is exactly B. So B इस सर्कल के ऊपर कहीं पे होना चाहिए, that's why it is called as the locus of that B. And when you look from the top, so definitely वो locus जो है, सर्कल जो है, वो to and fro लाइन कंस्ट्रक्ट करता हुआ दिखेगा। So that is also locus of B. So top view में B जो आपका पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर कहीं पे होना चाहिए। So that two information we are gathered with the help of these two steps. Now, what is the importance of this information is, see, now you look, you read this, see, once we understand about locus, see the third step is you just locate the locus of B in the front view. So just locus of B in the front view. So this is the front view locus, that is straight line and circle, right? At the same time, fourth step is what? You just locate the locus of B for the top view. So for the top view, these are the locus for the top view. Now, we already aware about this A dash, only the issue is with B dash. Now what actually we have to do is, we have to combine this all information to find out the B point, that is B dash and B. So let's talk about front view first. See, what I conclude that this is the line on which the possibilities of B dash, ये B dash जो है वो इस लाइन के ऊपर कहीं पे होना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन।
सेकेंड इंफॉर्मेशन, इस सर्कल के ऊपर आपका बी डैश कहीं पे तो होना चाहिए, राइट। So if you are intersecting this or overlapping this two diagram, then definitely what happened, you are in the position when you overlapping this two diagram, then you are in the position, ये वाला सर्कल का इंफॉर्मेशन इस सर्कल के ऊपर बी डैश कहीं पे होना चाहिए और इस लाइन के ऊपर बी डैश कहीं पे होना चाहिए. When you overlapping that two, you will in the position to find out the intersecting point. So that point is ultimately our front view projection of B, that is the B dash, right? तो क्या करना है आपको, इसी लाइन को इसके ऊपर आप ओवरलैप कराओगे तो डेफिनेटली in this way you can see in this way, if I will overlapping this line on this circle, then definitely I have intersecting point somewhere, not it is exactly not over here, don't confuse. When you actually place that line, so that is look like something like that. That means this is the locus of B as well as this is the locus of B. So wherever it will intersecting, that point will give you final front view projection of that B dash. So in that way you have to find out, you are in the position to locate this B dash. Same thing, same logic we can apply it for this top view projection. This is the locus of your B point as well as this is the locus of your B point. So you just overlap this on this circle. Definitely you are getting the point, intersecting point. This is the circle of locus B and this is the straight line of locus B. So when you draw that, definitely you are getting the intersecting point somewhere over here. So which will give you the top view projection. So once you will get the B point, definitely you can join that B with the A. So you will get the front view or top view projection of AB. In the same way, you will get the front view projection A dash, B dash. So I think this is how we can solve this kind of problem. Definitely it took a little bit of time to understand how we have to proceed. Don't worry about that. These are the conceptual understanding, theoretical understanding how we can solve such kind of problem. However, once we will solve actual problem, then definitely you are in the position to solve this type of problem. Now see, only a few things we need to remember is, first, make your line such that it will become parallel to VP. So this is first step. Solve that problem separately. Second, make your line such that it will become parallel to HP. So if it is a parallel to HP, definitely from the top view you can construct the projection. So this is the second problem. Then after, you just merge that all information to get the idea about this front view as well as top view projection.